Then standard autopsy suite basically layout is like this, that they should have all the initial things, all the essential things which should be there. A journal layout, that how the offices should be placed. For example, it's a general principle that the autopsy lab and then the office of the autopsy surgeon, and along with that the record room, they should be very close to each other, सो दैट टैंपरिंग ना हो सके, वो अपने कमरे से उठे और उसके साथ ही रिकॉर्ड रूम हो जहाँ पे वो अपनी सेव कर सकते विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर पीपल, ठीक है, या कोई और दरमियान में ना आए. The principle, as I told you, this is the principle that it should be close to each other for the avoid the tampering. So it must have an administration area where all the, because you know very well autopsy documents are how much important, ठीक है. We cannot perform an autopsy, we should not perform an autopsy unless we have received the documents from the police, and along with that the overall administration where the police should be standing, where the relatives should be standing, where the duty doctor, where the students, so at admin block in that area, a small desk, a small room is very important to so that autopsy surgeon को खुद से जाके उन लोगों के साथ डील ना करना पड़े. His main focus is to the autopsy. Then registration area, where the two registers, you know about that. If the case of poisoning is there, we have a different form. In case of specific homicidal murder because of any other thing, we have another form, alif be जीम उर्दू में उन फॉर्म्स को बोलते हैं. तो नॉर्मल डेथ है तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी आपकी डिफरेंट होती है. यू हैव टू राइट डाउन द टाइम when the body is received and the time of conduction of autopsy, and you should prove in the court that sorry, if there is a difference of some hours you should tell the court the problems why the autopsy is not conducted at the same time. Then the storage arrangement is very important for the short term storage and for the long term storage. Autopsy conduction lab में all the dissection instruments should be in a very good state. Along with that, the autopsy table. Specimen handling area, where you are just, as you know कि हम ले रहे होते हैं सारे specimen इकट्ठे कर रहे होते हैं from the body. We are basically taking the viscera, ठीक है, और उन viscera को आप normally क्या करते हो, उनको कौन सा solution के अंदर डालते हो for the toxicological analysis? नहीं, फॉर्मेलिन में नहीं डालते फॉर द टॉक्सिकोलॉजिकल, hypersaturated saline solution, ठीक है, and for the histological and the formalin. नहीं जलजला रही है. ये वाला माइक चल रहा है? अच्छा, ठीक है, ऑन ही है. अच्छा, ठीक है. सो स्पेसिमेन हैंडलिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पेसिमेन को कैसे कैसे हैंडल करना है. सेपरेट एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपने बाद में कंटेनर्स में डालना है और उन कंटेनर्स को कहाँ रखना है. देन एज आई टोल्ड यू द व्यूइंग गैलरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरे यूनिट, मोबाइल एक्सरे यूनिट, एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मली ये होता ही नहीं है, अगर हो तो ज़्यादातर आउट ऑफ ऑर्डर होता है. देन फोटोग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमने ये भी देखा था कि सीन ऑफ क्राइम पे जब हम जाते थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर प्रोसीडिंग, बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, यही होता था. सिमिलरली यहाँ पे भी बॉडी की पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की भी फोटोग्राफी होती है, इंटरनल की भी होती है, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल रहा होता है उसमें भी फोटोग्राफी इज इंपॉर्टेंट. बॉडी आइडेंटिफिकेशन एरिया, ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बॉडी आइडेंटिफिकेशन एरिया? आपको क्या लगता है? आपको जब ऑटोप्सी स्टार्ट होती है तो ऑटोप्सी स्टार्ट कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज द मेन थिंग? जी बेटा.
वही बात है ना, आपके पास एक बॉडी आ जाती है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि पुलिस ने दो तरह से बॉडीज लेकर आनी होती है। वन कंडीशन इज दैट कि जहाँ पे बॉडी जो है वो पुलिस लाई और सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास हुए, और या इन सम कंडीशंस उनके पास अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, समटाइम आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती, इवन पुलिस को भी आइडेंटिफाइड बॉडी नहीं होती। वहाँ पे एक रिक्वेस्ट फॉर्म आती है फॉर द टेम्परेरी कि आप इस बॉडी को रख लें थोड़ी देर के लिए स्टोरेज में। मीनवाइल अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और तो फिर आप ऑटोप्सी कर दें, अदरवाइज समटाइम्स ऑटोप्सी नहीं भी होनी होती तो भी आप शॉर्ट टर्म के लिए उस बॉडी को वहाँ पे रख लेते हो। तो वहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन ईदर बाय द थर्ड पार्टी और बाय द ऑब्जेक्टिव मेथड और बाय द सब्जेक्टिव मेथड, जो आप सारे अभी पर्सनल आइडेंटिटी में पढ़ोगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन के, वहाँ पे हम ये सारा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। Then miscellaneous arrangements, this is basically all the suction, UV light, ये सब चीजें present होनी चाहिए along with the autopsy table and in the autopsy lab. If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell button to receive all the notifications. And my channel name is Dr. Javed Iqbal Kokar, Lectures on Forensic Medicine.